Fine, we will start now, right? So I hope my screen is visible. Just confirm whether it is visible or not, and my I'm audible or not. Just two things, please confirm once again, right? Yes, sir. Okay, fine. So basically, what's the idea? Okay. So basically, what we are going to do in this particular session, uh, you know, in every chapter there are certain important points. I have converted those important points in the form of MCQs, right? And we will see those MCQs. 99% chance is there if you cover these MCQs, whatever I am giving you, right? That will be more than sufficient to solve at least 7 to 8 questions in your NTSC stage 2. That means what, 20% of political, 20% of social studies, right? Okay. So क्वेश्चंस इसी से आएंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं, राइट? तो पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है, unnecessary, it will take hell lot of time and उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, राइट? सो वी विल डू इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. केवल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं सारे तुम्हें दे ही दूंगा, राइट? ठीक है ना? वी विल डिस्कस ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? उसके अलावा भी एनसीईआरटी में जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक नहीं बने, राइट? वी विल ऑल्सो सी दैट पार्ट, राइट? और मैं तुम्हें ये भी दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी से वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी कवर करने की कोशिश की है. सो इट विल बी बेटर इफ यू पार्टिसिपेट, राइट, इन दिस प्रोसेस. ओके, सो let's begin, right? There is the first question. Democracy is considered to be better than other forms of government. Which of the following statements support this claim, right? It is a more accountable form of government. There is no doubt about that, right? तो अगर A सही है तो कम से कम इतना तो कह ही सकता हूँ. चलो पहले आंसर बता दो मुझे. Let's see that. Option 1, A, B and D. Yes. Answer is what? It is a more accountable form of government, right? It improves the quality of decision making. Yes, very good. And it enhances the dignity of citizens, right? जो third वाला point है, it ensures rapid economic development of citizen. That is not correct. Why this is not correct? There is a wonderful book written by Mr. Sasi Tharoor, right? And that is Pax Indica. And there is a chapter on that where he has compared basically what the development of India and development of China, right? ठीक है. और चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वी ऑल नो दैट पार्ट. सो मैं तुम्हें एक स्निपशॉट दिखाता हूँ, राइट? And that snapshot will be sufficient to understand this particular point, that it ensures rapid economic development of what? Citizens, right? So see this. This is the snapshot of, from that book, Pax Indica, that is written by Mr. Sasi Tharoor, right? I hope you all know Sasi Tharoor, right? So what he says in this particular book, right? If China wants to build a new 6-lane expressway, it can bulldoze its way past any number of villages in its path, right? In India, if you want to widen a 2-lane road, you could be tied up in court for a dozen years over compensation entitlements, right? So that means what? You can see the clear difference. In a democracy, you have to go through a process, right? Okay, in a democracy. But like a country like China, they're what, where the Communist Party actually rules, right? Communist Party of China, CPC, you all know. So there, it's for them, it's not that difficult. So that's why you can now understand that it ensures rapid economic development of citizen. That is not correct, right? अच्छा, अब ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ये देखो. So see these words. These are the bold words. That is what the NCERT in chapter 1, right, of class 9th. So you see, a democratic government is a better government because it's a more accountable form of government. Direct वहां से उन्होंने word उठा लिया, ठीक है ना? So just you do 9th and 10th class NCERT and you will be able to solve 40 out of 40. I'm telling you, ठीक है ना? I'm giving you all the questions. That will be sufficient. तुम्हें कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है. जितना मैं दे रहा हूँ notes, more than sufficient है. I don't want to boast, but if everything goes well, अगर जो previous year pattern है, right, then in that case you will be able to solve 35 questions minimum if you do all these questions, right? ठीक है ना? Whatever I am going to give you, right? So this is what democracy provides, a method to deal with differences and conflicts, right? Okay. Then it is what? Democracy enhances the dignity of citizens. Democracy improves the quality of decision making. And there is one more point. हो सकता है अगली बार जो क्वेश्चन बनाए उसमें ये पॉइंट इंक्लूड कर दें.
It is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistakes. That means what, if you are not satisfied with the government, you can throw the government after 5 years in the election, right? Don't choose. Okay. So these are the 5 points which you should know going. Now see, King of Bhutan, match the following again from NCERT. King of Bhutan has declared that in future he will be guided by the advice given to him by elected representatives. You will match with what? Rule of law, respect for rights, one person, one vote, one value, free and fair electoral competition, major decision by elected leaders. 1, 2, 3, 4, 5. Which one? 5. Excellent, right? So it will be 5, right? Very good. So king of course, elected representatives. So unka representation, major decision taken by what? Elected leaders, right? Many Tamil workers who migrated from India were not given a right to vote in Sri Lanka, right? इसका मतलब 3. One person, one vote, one value. Yeah, good, Subham, right? Next. The king imposed a ban on political gatherings, demonstrations, and rallies, right? What's that? 4. 4. Free and fair electoral competitions. No. It should be, I think, देखो अच्छा चलो, अगर इसमें मान लो डाउट है, सपोज अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, डाउट है, तो लीव इट. The Indian Supreme Court held that dissolution of Bihar Assembly was unconstitutional. That is what, definitely it is what? Rule of law. And political parties in Bangladesh have agreed that a neutral government should rule the country at the time of elections. तो अब जब इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पे न्यूट्रल गवर्नमेंट होने का मतलब क्या है? In that case, the election will be more free and fair, right? So this will be free and fair electoral competition. So now what is left? That is what? Respect for rights. So in this way, yes. Okay, चलिए next. So this is what थोड़ा सा democracy का definition बस देख लो, is a form of government in which the rulers are elected by the people. In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people, right? देखो इस statement को थोड़ा समझने की जरूरत है. That means such things happens in indirect democracy, right? There are two types of democracy, right? One is indirect and one is what? Direct democracy, right? Majority, I mean, in fact, all the countries in the world, right? There it is what? Indirect democracy. अगर तुम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल देखो तो इट्स ओनली स्विट्जरलैंड, और उसमें भी स्विट्जरलैंड में कंप्लीटली नहीं, in certain parts of Switzerland, right, where there is direct democracy. That means what? People are directly involved in what? Decision making. But India के केस में ऐसा possible नहीं है, right? Because we are just 1.37 billion people, right? For us, it is not possible to take part in each and every decision, right? So for that, what we do, we actually choose our representatives who takes decision on behalf of us, right? Okay. So that's why in India, it's an indirect democracy. And I hope you are getting the difference between indirect and direct democracy. At any point of time, if you have any doubt, please ask. Now, what was apartheid? It's a very famous word. No questions till now. I mean, but it can come again. Chapter number 2. We have entered in chapter number 2. Yes, it's institutionalized racial segregation, right? Yes. So it is what? Now, racial segregation. What was the name of, we will see this, right? Apartheid is what? Official policy of racial separation and ill treatment of blacks followed by the government of South Africa between 1948 to 1989. So you should remember also, see what happened. 1948 to 1989, this was apartheid was going on, right? अच्छा, एक चीज और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं था कि 1948 से पहले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था, right? It was going on before 1948 also with the blacks. But what happened after 1948, when this particular party came in power, Nationalist Party or National Party, right? They actually, National Party, when they came in power actually, right? They actually increased this racial, what? You can say segregation, right? Or, you know, racial separation or and ill treatments of what? Blacks. So from 1948, these ill treatments actually what? Intensified, you can say, right? So ill treatment intensified. So what I am saying that before 1948, there was ill treatment with the blacks, but I mean, since 1948, it got intensified and it went till 1989. Then 1990, so 1993,
there was a basically, you can say, a kind of compromise that was going on between two parties. One is Nationalist Party, I can say it NP, and this is what NP, and plus there is one more party that belongs to Nelson Mandela, and that is what African National Congress, right? So you can see here ANC, और उनके बीच negotiations चले, and then 1994 में the Constitution of South Africa came in what existence, right? So that is the question there also. Constitution, and this is written in NCERT, so for your NTS it is important, right? Constitution of South Africa came into what? Existence, right? Okay. So this is what your 1994, right? And 1993 Nobel Prize, I mean Nelson Mandela, he got Nobel Prize, right? Okay. Anyway, coming back. What was the name of Nelson Mandela's political party which came in power in 1994? Zulu National Congress, African Union, Durban National Party, African National Congress, right? It's very easy question. Fourth, yes. So it is what? ANC, right? Okay. I hope it is clear up to this. If you have any doubt, please ask. Okay. Which of the following was not one of the four race-based groups under the system of apartheid? Coloreds, white, Indians, Americans. Answer. 4, right? Anyone else? So which was, if it was not Americans who were there, so that is what? African blacks, right? So African blacks. So yes, answer will be what? Your 4, right? Now from where this question can be asked, there is an image in your NCERT, if you see, that is natives, that is African blacks, Indians, coloreds, right? That is a danger, right? If you enter these premises at night, you will be listed as missing, like that. I mean, these are kind of, you can say that the, you know, on the basis of races, certain discrimination were going on. जैसे blacks का क्या था कि they can't even go in white areas, right, where white lives actually. और जिस church में white जाते थे, उस church में वो लोग जा नहीं सकते थे, right? ठीक है ना? इनफैक्ट उनको परमिट्स की जरूरत होती थी, राइट, ब्लैक्स को, अगर उस एरिया में उन्हें वर्क करना है तो उनके लिए डिफरेंट टॉयलेट्स थे, डिफरेंट स्कूल्स थे, लाइक दैट. ऑल दीज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वेर टेकिंग प्लेस, राइट, अंडर अपार्थाइड. And see the beauty, I mean, or see the greatness of Nelson Mandela, that he sat with the same party who did all these things. That is what the National Party. So that is what Nelson Mandela, or you can say Gandhi also, in लोग का status बहुत high है, right? The apartheid government came to an end in the year. Which year? Four. Anyone else? 4 is not the correct answer. ऑप्शन 2, यस. यहाँ पे थोड़ा सा देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया 1993 तक क्या चल रहा था आपका, निगोशिएशंस ही चल रहे थे, राइट? ठीक है ना? क्या बोला मैंने? 1948 टू 1989 अपार्थाइड, 1990 टू 1993 निगोशिएशंस, 1994 कॉन्स्टिट्यूशन आया, और 1994 में ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी पावर में आई, जो आज तक पावर में है. सो इनफैक्ट दिस पार्टी स्टिल रूल्स द साउथ अफ्रीका, सो स्टिल इन पावर टिल डेथ. वो अलग बात है कि 2004 के बाद इनकी पॉपुलैरिटी डिक्रीज हुई है, जैसा अभी साउथ अफ्रीका न्यूज में भी था, तुम लोगों ने शायद सुना भी हो, राइट? वहां पे कुछ लूट्स वगैरह हुए थे, राइट? ओके, सो दिस इज व्हाट द आंसर इज, 1994. ये ध्यान में रखिएगा. ओके, सो इट इज द वर्स्ट सिविल अनरेस्ट. दिस इज द न्यूज, राइट्स एंड लूटिंग इन साउथ अफ्रीका till the end of white minority rule in what? 1994, right? Okay, sure. Now this is also the question. Nelson Mandela spent 28 years in South Africa's most dreaded prison. 1. Excellent. A. Kuch, no, it's not Pretoria. It's A, right? Robben Island, right? So it is again written in NCERT somewhere, right? And where is basically Robben Island? Cellular jail तो वैसे भी इसको तो मतलब you can, अगर तुक्का भी मारना है तो probability will be what? 33.33% instead of 25%, because cellular jail is what? In Andaman, right? So Robben Island, that is what? So important है. Robben Island actually, it's somewhere written in NCERT, right? And you can see the geographical location of Robben Island. It's here, right?
And this you can see maximum security prison. It's a UNESCO World Heritage Site also, right? Robben Island. So answer is what? Robben Island. Important है, ध्यान में रखिएगा. Next. Democracy promotes equality through the following. बताओ. Which one? One. Universal adult franchise. Yes. Equality before law and equal protection of law. And reservation of scheduled castes, scheduled tribes, and women. Anyone? B. 1, 2, and 3. Yes, Abhishek, it is. See, B is the correct answer. All three are the correct answer, right? Democracy promotes equality, universal adult franchise. Yes. I mean, irrespective of your sex, irrespective of your place of birth, irrespective of your, race, caste, right? Of course, there is a caveat here that your age should be what? 18 plus, right? Anyway, but after that, if you are 18 plus, then you can cast the vote, right? Okay, irrespective of your sex, gender, I mean, or caste or place of birth, whatever. Equality before law and equal protection of law. And reservation, the third point is what? See, reservation is also basically what? It promotes equality, right? It promotes equality because what? Suppose if you see, if there is no reservation for scheduled castes, scheduled tribes and women, right? In that case, what will happen? Because their status in the society is not that much. They are not, very influential, right? In that case, there is a possibility that उनका representation actually नहीं होगा, right? जहाँ पे legislation में या executive में उनका representation नहीं होगा. And अगर representation नहीं होगा, that means what? It is, you are not promoting actually equality. So इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? Affirmative action. जैसे reservation भी है, तो affirmative action means what? You want to actually what? Give chances to these people जिनका representation actually नहीं है. For some reason, they are still backward, right? So you basically the answer will be 1, 2, and 3. I hope you, those who जिन्होंने भी आंसर फर्स्ट किया था, you are getting this point. Why we are saying that the third is also our answer, right? And how we are promoting equality through reservation. Are you getting this point? Okay, fine. Now see this, there are three actually. Okay, एक चीज और, मतलब I hope you are not confused in this particular question. When I say all countries that are democratic have a constitution, इसमें तो कोई doubt ही नहीं है, right? Written constitution, there are certain democracy जहाँ पे written constitution नहीं है, जैसे मैंने तुम्हें example दिया, right? ठीक है ना? UK का. अगर तुम word by word जाओ, yes, it should be, अगर it should be answer 2, right? But again, I would say if this question comes, right, mark it 3 because again the NTSC provided the answer key that 3, so just go by that. Okay, now see the preamble, right? If you see the preamble, there are 3 preambles in your NCERT, right? And these 3 preambles are basically what? One is what? Indian preamble, one is what? Your US, and one is what? Your South Africa. And all these 3 preamble starts with we the people. तो ये एक बात ध्यान में रखिएगा. We the people, right? We the people and we the people, right? But you will read the preamble, you will not find any such word like God in Indian preamble, right? Or preamble of Indian constitution, right? Even in US preamble or preamble of US constitution, you will not find any words like that God, right? But here you will find this God word, right? So the question can come in your exam also, that in which preamble the God word is there, right? Okay. So whether it is in South Africa preamble, and because only these 3 preambles are there, so you should know only these 3 preambles. That's it, right? Okay. We the people. ऐसे Republic of Korea भी है, right? Which is basically South Korea, right? North Korea is Democratic Republic of DPRK, right? Republic of Korea is basically what your South Korea. तो वहां का भी अगर preamble देखोगे, that preamble also starts with we the people, right? Okay. तो ये भी start होता है we the people से. खैर मुझे नहीं लगता इससे क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो भी मैंने देखा प्रीवियस ईयर, राइट? सो व्हाट इज बेसिकली व्हाट यू सी, वी द पीपल मींस व्हाट? 3 प्रियम्बल है, इसको याद रखो, एटलीस्ट एलिमिनेशन से तो क्वेश्चन कर ही जाओगे, आई एम श्योर, राइट? ठीक है, कि वी द पीपल से यूएस का प्रियम्बल, साउथ अफ्रीका प्रियम्बल, इंडियन प्रियम्बल स्टार्ट्स, और गॉड वर्ड जो है वो साउथ अफ्रीकन प्रियम्बल में, बाकी दोनों प्रियम्बल में नहीं है, राइट? ओके, दैट्स इट. प्रियम्बल के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे.
the first major attempt by Indians to draft an Indian constitution and draft a constitution was? The first major attempt, right? बताइए. Nehru Report, 1928. Option 1, 3. See, the answer is 1. Government of India Act 1935 has maximum contribution, right? If you see the present, I mean, जो Indian Constitution जब आया, जब adopt हुआ 26 of November 1949, or you can say commencement of Indian Constitution took place on 26 of January 1950, right? So in that constitution, if you see, the maximum contribution is there from what? Government of India Act. Maximum contribution Government of India Act से. तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट? हमने कई कॉन्स्टिट्यूशन से हेल्प लिया, जैसे कि अगर तुम देखोगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट, दैट वी टुक फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स अनदर मैटर. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था डीपीएसपी को, राइट? ठीक है. सो दैट मींस व्हाट, and that's why sometimes you will also see that there is a debate like Indian Constitution is mainly a borrowed constitution, which is not actually right. But anyway, Indian Constitution में जो maximum part लिया गया है Government of India Act 1935 से. But that is not the question. The question is what the first major attempt by Indians to draft a constitution was. So it was Nehru Report. A little story मैं तुम्हें बता देता हूँ, right? हुआ क्या? Government of India Act 1990, right? You all know Montagu-Chelmsford reforms, right? Okay. Montagu. तो Montagu-Chelmsford reforms 1919, right? अब Montagu-Chelmsford reforms basically that is what Government of India Act, उसी के accordingly Government of India Act 1919 आया था, right? ठीक है ना? Montagu was basically Secretary of State and Chelmsford was the Viceroy, right? At that time. उन्होंने क्या बोला? उस basically जो Government of India Act आया, तो Government of India Act में एक provision था, right? ठीक है ना? That provision was basically what? कि after 10 years we will actually review this particular act, right? 10 years के बाद हम लोग review करेंगे और उसके लिए commission भेजना होगा. Review after 10 years. 10 years के बाद review होगा और उसके लिए तुम्हें after वो एक commission भेजेंगे, right? अब 1927 के आसपास अगर तुम यूके की हिस्ट्री देखो, right? ठीक है ना? So 1927 यूके में वहां पे एक्चुअली जो था that is what कंजर्वेटिव पार्टी की गवर्नमेंट थी, कंजर्वेटिव पार्टी, राइट? और उनको ऐसा लग रहा था कि दे विल लॉस द इलेक्शन, राइट? सो इन दैट केस हु विल कम? लिबरल पार्टी विल कम, राइट? और अगर लिबरल पार्टी पावर में आती है तो देन इफ लिबरल पार्टी विल सेंड, राइट, दिस कमीशन, राइट, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन विल व्हाट हर्ट. ओके, सो व्हाट दे सेड, no, we are not going to wait for another 2 years, right? We will send the commission, or they constituted commission in 1927 itself, and that commission you all know, Simon Commission, right? So Simon Commission came in India in 1928, right? और उसका खूब विरोध हुआ. विरोध इसलिए हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, राइट? ठीक है ना? कोई भी एक भी इंडियन मेंबर साइमन कमीशन में नहीं था, राइट? सो बेसिकली व्हाट हैपेंड दैट और लाला लाजपत राय का भी आपने नाम सुना होगा, राइट? सो बेसिकली व्हाट द प्रोटेस्ट वाज गोइंग ऑन, राइट? एंड साइमन कमीशन बेसिकली, तो वहां के जो ब्रिटिशर्स थे, राइट, ऑफिसर्स थे, उन्होंने बोला कि अगर आपको इतना ही लगता है कि आप में के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इंडियंस के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो रिव्यू कर सकते हैं, राइट, एक एक्ट को, राइट, तो खुद आप अपना ही खुद कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं लिख देते हो, राइट? ठीक है ना? सो इट वाज काइंड ऑफ एक तरह से उन्होंने बोला कि एक चैलेंज, and that challenge was accepted by Nehru. I mean, he was Motilal Nehru, right? And he published a report. That is what Nehru Report. So you can say the first major attempt by Indians to draft a constitution was what? Nehru Report, that came in 1928, right? Okay. Chaliye. Next. The Karachi Resolution was passed by the Indian National Congress at its Karachi session in. Again, this is given in NCERT. This question can come, right, in your exam. Batao. So, okay, it's just an information. इसमें ज़्यादा wait नहीं करेंगे अपन. Answer is what? 1931, right? Okay. So where it is given? So you see, as far as this is from NCERT itself, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India, and this was the first attempt, which is called as Nehru Report. Motilal Nehru was father of Jawaharlal Nehru, our first prime minister,
In 1931, the resolution of the at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like, right? ठीक है, कैसा दिखना चाहिए. और इनमें जो नेहरू रिपोर्ट था और जो कराची सेशन में जो ड्राफ्ट किया गया था उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी थी. सिमिलैरिटीज में क्या क्या सिमिलैरिटीज थी, इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट. बोथ दिस डॉक्यूमेंट्स वेर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट, right to freedom and equality, right, and to protecting the rights of what minorities, right, in the constitution of independent India. So these are the 3 points which you should know. A good question can come on basis of this, right? Okay, बाकी एक बार इसको भी पढ़ सकते हो. This is about the again that Karachi resolution, right? Okay, Karachi resolution, remember 1931. Okay, चलिए देखते हैं. In 1934 the idea of constituent assembly, right, who wrote actually constitution, was put forward by, बताओ, अंबेडकर, महात्मा गांधी, M.N. रॉय, जवाहरलाल नेहरू. Okay, answer 1, again a factual question, right? ठीक है ना. So just remember that it was M.N. रॉय, right? Okay, yes, we can get tempted by B.R. Ambedkar, right? ठीक है, नहीं पता होगा तो M.N. रॉय, he established Communist Party of India, ठीक है ना. He established Communist Party of India, the same party which ruled West Bengal for many years, right? ज्योति बसु का आपने नाम सुना होगा. Communist Party of India, right? Communist Party of India, right? ठीक है ना. So just remember M.N. रॉय. हाँ, next, in 1935 INC officially demanded a constituent assembly. Official demand आया था, right? और जिस official demand को accept किया गया through August offer of 1940, right? ठीक है ना. तो ये भी ध्यान में रखना कि अगस्त ऑफर क्या था. बेसिकली आईएनसी का जो डिमांड था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, दैट वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट, इन प्रिंसिपल. उन्होंने एक्सेप्ट किया और रीजन वाज वेरी सिंपल. ऐसा नहीं था कि हम लोग पे मेहरबान थे, वो लोग कभी नहीं थे, ठीक है ना. नॉट इन माय ओपिनियन एटलीस्ट, राइट, टिल 1947. एनीवे, सो 1939 टू 1945 वर्ल्ड वॉर चल रहा था. उनकी हालत खराब थी, हिटलर ने उनकी हालत खराब कर रखी थी, ठीक है ना. तो उनको सपोर्ट चाहिए था इंडिया का, और इंडिया का सपोर्ट चाहिए था तो भाई आप जो बोलो वही सही है, ठीक है. सो इन दैट वे दे एक्सेप्टेड आवर डिमांड, राइट, सो दैट वी सपोर्ट देम इन वॉर. ओके, एनीवे, सो दैट्स व्हाई अगस्त ऑफर 1940 याद रखिएगा, ठीक है. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन व्हिच केम इन 1946. मैं लिख देता हूं. ओके, इन November 1946, December 1949, January 1950, January 1946. कम से कम ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही सकते हो, ये दोनों तो नहीं बोलोगे, ठीक है ना. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मुलेट हो रहा है, बन रहा है. बाकी दोनों में क्या आंसर होगा? One. Yes, it is what? November 1946, right? Just remember, November 1946, right? The Constituent Assembly of India was constituted, जिसमें 299 उस टाइम में ज्यादा मेंबर्स थे. बाद में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी बेसिकली वो भी डिवाइड हो गई थी. वन बिकेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, वन बिकेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान. इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया देयर वर 299 मेंबर्स, राइट. वैसे आगे नोट्स में है, याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में ये चीज दी हुई है. ओके, सो द क्वेश्चन कैन कम ऑन दैट. Anyway, member of the Constituent Assembly were directly elected by the members of Provincial Legislative Assembly, nominated by heads of princely state, both 2 and 3. Option 4 is the right answer. Yes, both 2 and 3, ये ध्यान में रखना, ठीक है. अब यहाँ पे फिर से केयरफुल रहना है हमें थोड़ा सा, ठीक है ना. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए केयरफुल रहना है क्योंकि एग्जाम तुम्हारी एनसीईआरटी इसको मेंशन नहीं करती है, कहीं पे भी मेंशन नहीं करती है कि, तो उन्होंने बस एक लाइन लिखी है, वो लाइन सुन लो. और वहां पे मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 7 में कि मेनली वर्ड इंपॉर्टेंट है, राइट. सो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर, अगर ये भी ऑप्शन आ जाए तो आंसर सही कर देना. वेयर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली मेनली. So these are the exact word in NCERT. Mainly मतलब कि most of the members were elected, right? Okay, by the members of the provincial legislative assembly, right? Some of the members, I mean members from provincial legislative assembly were elected.
members from princely estates were what nominated. You know that princely estates like Travancore is princely estate. It was princely estate, in fact, right? Hyderabad was princely estate. Jammu Kashmir was princely estate, right? All these princely estates, right? Okay. So answer is both 2 and 3. But अगर ये भी आ जाए, members of the Constituent Assembly were elected by members of Provincial Legislative Assembly mainly, correct it. Okay. First meeting of Constituent Assembly held on. Answer. First meeting 1946 में बना है नवंबर में, तो उससे पहले तो नहीं हो सकता ना. आंसर इज व्हाट 1, राइट. तो ये तो नहीं हो सकता. अगर नवंबर में बना है बच्चा, ठीक है, तो जनवरी तो नहीं हो सकता. मीट तो उसके बाद ही करेंगे, राइट. तो इट विल बी व्हाट बेसिकली, और 1947 नहीं, इतना टाइम भी नहीं लगेगा कि एक साल मीट करने के लिए. इट वाज 9th of December 1946, राइट. ठीक है, चलो. सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. Who was elected as the president of Constituent Assembly? Constituent Assembly के president कौन थे? President. Answer is 3. Excellent. President देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. महात्मा गांधी was, अच्छा एक बात, anybody can say Mahatma Gandhi was the member of Constituent Assembly or not? Was he the member of Constituent Assembly? Yes or no? No. Mahatma Gandhi was not the member of Constituent Assembly, याद रखिएगा. So he was not the member of Constituent Assembly, right? ठीक है ना. Dr. Rajendra Prasad, Jawaharlal Nehru, B.R. Ambedkar. Rajendra Prasad was the president actually, right? B.R. Ambedkar was basically what the chairman of drafting committee. तो ये ध्यान में रखिएगा, president राजेंद्र प्रसाद थे और जो chairman थे drafting committee के वो B.R. Ambedkar थे, right? ठीक है ना. वैसे एक और छोटा सा पॉइंट है, अगेन एनसीईआरटी में नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते हो. सच्चिदानंद सिन्हा वाज इलेक्टेड एज टेम्पररी प्रेसिडेंट, मतलब जब बना था तो थोड़े दिन के लिए, अनटिल अनलेस कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाए बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. टिल दैट टाइम सेशन तो चलेगा ना, तो सेशन को चलाने के लिए भी तो कोई चाहिए, राइट. जैसे एक प्रोटेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट होता है, अगर देखोगे, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एनीवे. तो जब एकदम से असेंबली होती है तो पहले दिन जब वो लोग शपथ ले रहे होते हैं, ओथ ले रहे होते हैं, तो वहां पे जो स्पीकर्स होते हैं, राइट, ठीक है ना. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेम स्पीकर, राइट. ओके, लाइक दैट द सेम इज व्हाट, जब तक उनका इलेक्शन नहीं हुआ तब तक तो सेशन चल रहा था, तो उसको कौन, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, राइट. सो दैट प्रेसिडेंटशिप वाज विथ व्हाट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एंड दैट्स व्हाई इट इज व्हाट टेम्पररी प्रेसिडेंट, राइट. नेक्स्ट. On December 1946, who moved the historic objective resolution in the assembly which laid down the fundamentals and philosophy of the constitutional structure? बताओ. Objective resolution, very important. किसने मूव किया था? और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही तो तुम्हारा प्रियम्बल आया है, ये भी ध्यान में रखना. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से ही प्रियम्बल आया है. ऑप्शन 4 सरदार पटेल. नहीं, देखो मोस्टली अगर तुम्हें तुक्का मारना होगा ना तो इधर नेहरू जी या अंबेडकर जी, राइट, ठीक है ना. महात्मा गांधी तो होंगे ही नहीं एनीवे, ठीक है. महात्मा गांधी पॉलिटिकल ये सबसे बाहर थे वो, ठीक है ना, उनको इससे मतलब नहीं था, राइट. पटेल का इन्फ्लुएंस कहाँ पे है? पटेल का इन्फ्लुएंस इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में, राइट, ठीक है ना. तो इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया से अगर कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो वहां पे सरदार पटेल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट. जैसे इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यू कैन से, राइट, पटेल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यहाँ पे एक्चुअली इट इज व्हाट नेहरू, राइट. सो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इट वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बेसिकली प्रियम्बल केम फ्रॉम दैट, ओके, जो एक तरह से फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, राइट, कि इंडिया कैसा होना चाहिए, राइट. दैट इज व्हाट प्रियम्बल, ओके. एनीवे, in all constituent assembly had 11 sessions over how many years? 2 years, 11 months and 18 days. याद रखिए, the question can come, right. देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट सेशन जो हुआ था वो जनवरी 24, 1950 को हुआ था, राइट. ऑन दैट डे उन्होंने नेशनल एंथम को एक्चुअली एक्सेप्ट किया था एक तरह से. तो नेशनल एंथम वाज एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 24, 1950, राइट, ठीक है ना. आई होप यू नो नेशनल एंथम, राइट, ठीक है, सबको पता होगा नेशनल सॉन्ग के बारे में, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, एक बहुत ही अच्छी एक मूवी है, पता नहीं तुम लोगों ने देखा है नहीं, गैंग्स ऑफ वासेपुर. तो उसमें एक सीन है
कि बोलते हैं कि बताइए नेशनल एंथम गाने को कहा गया तो गाने लगे क्या वंदे मातरम। तो सामने वाला बोलता है कि आपको पता है कि नेशनल एंथम क्या है, तो बोलता है हाँ हमको पता है। तो वो गाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है ना। सो दैट्स अ क्रूअल जोक ऑन यू नो द दिस कंडीशन ऑफ द पॉलिटिशियन इन दिस कंट्री, राइट, थ्रू दिस सीन। एनीवे, सो यू नो नेशनल एंथम क्या है, नेशनल एंथम, राइट, ठीक है ना। और कुछ 64 लाख लगे थे टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। बाकी सब कुछ ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 24 जनवरी के बाद बैठना बंद हो गई। दैट वाज एक्टिंग एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट, राइट, टिल द इलेक्शन हैपेंड, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन दैट हैपेंड इन 1951 1952। most of the part took place in 1952, some of the part took place in what 1951 also। इसलिए कई जगह देखोगे तुम केवल 1952 ही लिखा होता है। और उसके बाद जब पार्लियामेंट बनी, इलेक्ट होके आई, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, राइट, ठीक है ना। सो दैट वाज एक्टिंग एज प्रोविजनल पार्लियामेंट इवन आफ्टर जनवरी 24 1950। Who was the chairman of drafting committee appointed by constituent assembly? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी बता दीजिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? आंसर इज डॉक्टर बी आर अंबेडकर, राइट, एक्सलेंट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, फॉर योर एग्जाम। The constitution contained 395 articles and 8 schedule was adopted on, again very important question, which date is mentioned on preamble? कौन सा डेट है? वहीं पे लिखा हुआ है adopted, right? It's 3. Yes, option is 3. अगर तुम देखोगे तो याद रखिएगा कि enacted and adopted on 26 of November 1949, right? और commencement जो था वो 1950 में 26 of January, which is our Republic Day, right? ठीक है। So November 26, 1949 is basically what? It was adopted, right? उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं, राइट, ठीक है ना। एंड प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, ये ध्यान में रखिएगा। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर तुम शुरू में देखोगे तो इट वाज बिलीव्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज अ बेरुबारी यूनियन केस दैट हैपेंड इन 1960, राइट, और उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि नो, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट के अगेंस्ट, मतलब एक तरह से पलट दिया अपने जजमेंट को 1973 में, ऑन 24th of April, right, 1973। there is a very famous case, केशवानंद भारती केस, राइट। और केशवानंद भारती केस में उन्होंने ये चीज कहा कि यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, बेरुबारी यूनियन केस ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, याद भी मत रखो। जितना याद रखना उतना ही करो। 11th में आई नो तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर है, राइट, ओके। सो दिस इज व्हाट, बस इतना समझ लो कि हाँ, अब तुम बोलोगे कि सर 2 महीने में ऐसा क्या हो रहा था कि इनैक्ट, मतलब कि अडॉप्ट करने की जरूरत पड़ी, इनैक्ट करने की जरूरत पड़ी। तो कुछ प्रोविजंस जो थे वो इतने इंपॉर्टेंट थे, राइट, सर्टेन प्रोविजंस वर सो इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि उनके लिए हम 2 महीने वेट नहीं कर सकते थे। पार्टीशन हुआ था, लोग इधर से उधर जा रहे थे, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया, राइट, ठीक है ना। तो देखोगे कि कुछ प्रोविजंस जो थे वो 26 नवंबर 1949 को ही आ गए थे, राइट, ठीक है ना। दीज आर द प्रोविजंस 5, 6, 7, 8, 9, राइट। So if you see certain provisions, they are the part second, right? अगर तुम देखो तो part 1 क्या है? Union and its territory, right? Part 1 is what? Union and its territory, right? और उसका जो articles है, that is what article 1 to 4. सेकेंड पार्ट जो तुम देखोगे तो दैट इज व्हाट पार्ट 2। ये क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे, ठीक है ना। तो फर्स्ट 5 पार्ट्स तो याद रखिए आप, फर्स्ट 5, उसके बाद याद रखने की जरूरत नहीं है। एक और इलेक्शन का भी याद रख सकते हो, ठीक है ना, सिटीजनशिप, राइट। सो दिस इज व्हाट आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 3 वी ऑल नो, इट इज व्हाट फंडामेंटल राइट्स, ओके। सो दिस इज व्हाट एफआर, दैट इज व्हाट 12 to 35। अगर तुम पार्ट 4 की बात करो, इट इज व्हाट डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट, दैट इज व्हाट बेसिकली 36 to 51। एंड दिस इज व्हाट योर पार्ट 4A, राइट, and this is basically what your fundamental duty। just you remember these 5 parts। questions इससे आ सकते हैं, match the following type का question बन सकता है इससे, ठीक है। so this is what your part 4 is DPSP। part 4A शुरू में नहीं था, ठीक है ना, इसको लाया गया, जब लाया गया
तो it was actually added by 42nd Amendment Act, 42nd Constitutional Amendment Act 1976, right? और उस टाइम में इमरजेंसी थी, राइट? सो यू नो फंडामेंटल ड्यूटीज एक्चुअली यूएसएसआर से लिया गया, राइट? और उस टाइम में इंडिया पे यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था, राइट? सो 1971 में वॉर हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, राइट? और उस टाइम में यूएसएसआर ने हमें काफी हेल्प भी की थी, राइट? तभी देखोगे तुम सोशलिस्ट वर्ड हुआ, सेकुलर वर्ड हुआ, सोशलिस्ट वर्ड भी प्रियम्बल में ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, सोशलिस्ट। और यूएसएसआर में भी देखो तो वहां भी एक सोशलिस्ट वर्ड तुम्हें दिखेगा, राइट? सो दीज थिंग्स आर लिटिल कनेक्टेड, राइट? थोड़ा सा एनीवे। सो अब देखो ये जो आर्टिकल्स हैं, दीज आर्टिकल्स आर रिलेटेड विद व्हाट योर सिटीजनशिप, राइट? तो सिटीजनशिप पे हम वेट नहीं कर सकते तो 2 महीने के लिए, तो इन आर्टिकल्स को हमने पहले ही ला दिया। जैसे 324 है, दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, इलेक्शन, राइट? तो इलेक्शन भी करवाना है हमें, राइट? उसके लिए प्रिपरेशन करना है, सो वी कांट वेट 2 months, राइट? So these articles actually came on in existence on 26th of November 1949, and rest of the provisions they came in existence on 26th of January 1950, right? ठीक है ना? तो this is what date of its commencement, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950, और adoption का जो डेट है वो 26 नवंबर 1949 है, राइट? ओके। और 26 जनवरी तुम बोलोगे सर अब 2 महीना क्यों, 26 नवंबर को ही कर देते। तो उसका भी एक रीजन है कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया गया था, टोटल इंडिपेंडेंस, जो डिसीजन लिया गया था 1929 में आईएनसी के बेसिकली व्हाट लाहौर सेशन में। तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इसलिए 26 जनवरी का अपना एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस था, तो लोगों ने सोचा उसी दिन हम लोग कमेंसमेंट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का 26 जनवरी को, राइट? एंड दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, रिपब्लिक डे, राइट? Who among the following is recognized as the father of Indian Constitution? Very simple question, may be asked in your exam also, right? Father of Indian Constitution, बताइए। Very simple, Dr. B.R. Ambedkar, right? ठीक है। So answer is what? Yes, Kush, Shubham. So answer is what? Dr. B.R. Ambedkar. He was the father of Constitution, and he was also considered as modern Manu, right? Modern Manu, right? मनुस्मृति का नाम तुमने सुना होगा, काफी चर्चा में रहता है, ठीक है ना? मनुस्मृति, उनको मनु ने लिखा था। वो एक्चुअली वो भी एक तरह से कोडिफाइड है, कोड ही है एक्चुअली, मतलब एक तरह से यू कैन से कि जो भी रूल्स हैं उनका एक तरह से कलेक्शन है, राइट? सो उनको इसलिए मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। एनीवे, मैच द फॉलोइंग। मोतीलाल नेहरू को किससे मैच करोगे? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से करो, ये क्वेश्चन आ सकता है। इट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। मोतीलाल नेहरू 4 prepared a constitution, right? नेहरू रिपोर्ट, ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट 4, एक्सीलेंट। बी आर अंबेडकर, फर्स्ट का 4, यस शुभम, वेरी मच करेक्ट। बी आर अंबेडकर, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, यस, एक्सीलेंट। राजेंद्र प्रसाद, यस यस यस, राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट? ठीक है ना? एंड सरोजिनी नायडू, शी वाज द मेंबर, राइट? शी वाज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये भी याद रखना कि सरोजिनी नायडू वाज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट? महात्मा गांधी वाज नॉट। ऐसा भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, फाइन। This is a very simple question. I will not ask which of these is a provision that a democratic constitution does not have, right? So name of the head of a state. Of course, you will not find name of the head of a state in Indian constitution, right? ठीक है। पावर के बारे में of course दिया गया है, right? कि गवर्नमेंट को कैसे रूल करना है, right? कितने मतलब किस टाइप के वो रूल्स बना सकते हैं, राइट? ठीक है ना? ऐसा नहीं कि कल इंडिया को उन्होंने बोल दिया कि नहीं नहीं इंडिया डेमोक्रेसी है ही नहीं, मोनार्की है, ये नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है ना? यू कांट डू दैट इवन यू हैव अ मेजॉरिटी, राइट? बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, चाहे आप 543 मेंबर्स हाँ क्यों ना कर दें पार्लियामेंट में बैठ के, ठीक है ना? उससे चेंज नहीं होगा, बिकॉज देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट वो भी जो भी चेंज होगा, जो भी अमेंडमेंट होगा, उसको नल एंड वॉइड कर देगी, राइट? ठीक है। सो केस, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट केम अगेन फ्रॉम दैट केशवानंद भारती केस इटसेल्फ, राइट? सो ऑफ कोर्स पावर ऑफ द हेड ऑफ स्टेट के बारे में मेंशन है, पावर ऑफ द लेजिस्लेचर के बारे में, नेम ऑफ द कंट्री, यस इंडिया, दैट इज भारत, ठीक है ना? अगर तुम आर्टिकल 1 देखोगे तो ऐसे ही स्टार्ट होता है। सो यस, आंसर विल बी बी। चलिए, यंग इंडिया वाज अ वीकली पेपर, अगेन इन एनसीईआरटी इट इज गिवन, और जर्नल इन इंग्लिश पब्लिश्ड फ्रॉम 1919 टू 1931 बाय महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बलदेव सिंह। ट्राई करो, यंग इंडिया। So again, just remember, it's what Mahatma Gandhi.
गिवन इन योर एनसीईआरटी क्वेश्चन कैन कम, राइट, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको. इट्स द आंसर इज व्हाट महात्मा गांधी. एक और था जो महात्मा गांधी ने किया था, दैट इज व्हाट योर हरिजन. सो दैट वाज आल्सो न्यूज़पेपर. तो ये भी ध्यान में रखो, बट अगेन इसको स्किप भी कर सकते हो, बट कम से कम इतना तो याद रखो कि यंग इंडिया बेसिकली व्हाट, यस, दैट वाज पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी, राइट. ओके. एंड देयर वाज अनदर न्यूज़पेपर, वीकली न्यूज़पेपर, दैट वाज हरिजन, दैट वाज आल्सो पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी, राइट. और उसमें एक स्नैपशॉट भी दिया हुआ है जिसमें गांधी जी बोल रहे हैं यंग इंडिया में ही कि अनटचेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. तो गांधी जी का अपना एक इन्फ्लुएंस था, राइट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स पे, तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, राइट. तो देखोगे तो आर्टिकल 17 देखो, आर्टिकल 17 एक्चुअली एबॉलिश्ड व्हाट, अनटचेबिलिटी. तो ये एनसीईआरटी में कहीं है भी, एक दो पैराग्राफ में उन्होंने मेंशन किया कि गांधी जी का कैसे इन्फ्लुएंस था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स पे, और उसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे किस तरह के प्रोविजंस आए जिसको गांधी जी सपोर्ट करते थे, राइट, ठीक है. ओके, चलिए. सो दिस इज व्हाट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17, याद रख सकते हो. नाउ दीज आर सर्टेन टर्म्स इन योर व्हाट प्रियम्बल, राइट. तो प्रियम्बल में देखो, प्रियम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न. मुझे लगता है कि अगर तुम ये दो पेज, दैट पेज कैन गिव यू वन क्वेश्चन, मोर देन 50% प्रोबेबिलिटी में बोल रहा हूं कि हो सकता है यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फॉर श्योर मान के चलो, ऑलमोस्ट, राइट, ठीक है. ऑलमोस्ट दे आर आस्किंग फ्रॉम पास्ट 2-3 years, एक आध क्वेश्चन इस तरह से बन ही रहा है, ठीक है. तो क्या है, अब देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो अभी तक नहीं पूछा गया वो भी मैं बता दे रहा हूं. पहला तो ये कि ये अडॉप्ट हुआ था 26 November 1949. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, राइट. अडॉप्ट, राइट. कमेंसमेंट कब हुआ था? 1950, 26 January. नेक्स्ट, द सेकंड वन इज व्हाट, सर्टेन वर्ड्स वेर एडेड, राइट. कौन कौन से वर्ड? सोशलिस्ट एंड सेकुलर, दीज टू वर्ड्स वेर एडेड. एंड एक तुम्हारा एंड इंटीग्रिटी, ये दो वर्ड्स ऐड हुए थे. ये दो वर्ड्स कैसे ऐड हुए थे? तो अभी हमने देखा ही था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा अमेंडमेंट था, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड हुई थी, ठीक है. सो दिस इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, ठीक है. तो ये एक ध्यान में रखो कि ये वर्ड ऐसे, इसको ध्यान में कैसे रखना है. अब नाउ यू ऑल बिलोंग्स टू मोस्टली यूपी, राइट, ठीक है ना. और यूपी में किसकी गवर्नमेंट थी? इससे काफी पहले मायावती की गवर्नमेंट थी, जिनको बहन जी कहा जाता है, ठीक है ना. तो बहन जी बेसिकली व्हाट, बहन जी मतलब सिस्टर. तो सिस्टर का सिस ले लो, और एस से ले लो तुम सेकुलर, और एस से ले लो तुम क्या, सोशलिस्ट, राइट. और आई से क्या ले लो, इंटीग्रिटी, राइट. तो ऐसे बहन जी टाइप याद कर लेना, ठीक है ना. SIS, दीज वर्ड्स वेर एडेड वाया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है NTSC में. अगर तुम 2012 या 13 का पेपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, उन्होंने पूछा था कि ये जो 5 वर्ड है इनका ऑर्डर क्या है, राइट. तो ऑर्डर याद रखना, जो S वाले हैं वो पहले आ रहे हैं. तो दिस इज व्हाट SSS, एंड दिस इज व्हाट डॉक्टर, SSSDR, ऐसे याद रख लो, ठीक है ना. तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हो. कम से कम DR अगर मान लो फर्स्ट 3 में आ रहा होगा तो उसको तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दोगे, राइट. और ये भी ध्यान में रखो कि लास्ट ये जो दो हैं ये ऐड हुए थे. और ऐड कब हुए थे? 1976 में. ऐड जब हुए थे उस टाइम में USSR का हमारा बहुत इन्फ्लुएंस था. USSR वाज सोशलिस्ट कंट्री, राइट. तो एक तो इसमें सोशलिस्ट होगा ही होगा, राइट, ठीक है ना. तो एक तुम्हारा क्या होगा, दिस इज व्हाट योर सोशलिस्ट. तो अगर इतना तुम्हें याद, एंड दिस इज व्हाट सेकुलर, ये बाद में ऐड हुआ है, राइट. तो सेकुलर डॉक्टर के पहले है, राइट, ठीक है ना. डॉक्टर शुड बी सेकुलर, ठीक है ना. कहते हैं ना डॉक्टर को क्या, उनको वो नहीं देखना चाहिए, कोई रिलीजन नहीं देखना चाहिए, राइट, ठीक है ना. कोई धर्म नहीं देखना चाहिए, कोई भी आए उनकी सेवा करनी चाहिए. तो डॉक्टर के जस्ट पहले सेकुलर, राइट. तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हो. यू शुड डेवलप दैट स्किल, दैट विल नॉट हेल्प यू हियर बट दैट विल हेल्प यू इन JEE मेंस आल्सो, एडवांस आल्सो. Later on, if you prepare for certain competitive exams like UPSC, there also it will help you, right? Okay, fine. So these are the 5 points. अगर preamble से कोई क्वेश्चन आता है, इतना, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है ना. बाकी अच्छा, पूछने को ये भी पूछ सकते हैं आप, जस्टिस लिबर्टी, बट आई डोंट थिंक सो कि जस्टिस में कौन कौन सा जस्टिस है. तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस है, राइट. ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, राइट. लिबर्टी किसका किसका है? थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ का है. इक्वालिटी, ये भी दो याद रख सकते हो, राइट. Okay, now there are certain words. Equality.
अब देखो इन वर्ड्स को तुम देखो, और देयर इज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, राइट? सो इक्वालिटी इज व्हाट ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट? दैट इज इक्वालिटी. फ्रेटर्निटी मतलब एक फैमिली वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना? ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर अ मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, राइट? मतलब किसी दूसरे को तुम इंफीरियर की तरह फील मत करवाओ, राइट? रिपब्लिक मतलब क्या? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन. दैट मीन्स व्हाट? जैसे अगर तुम ब्रिटेन देखो तो दैट इज नॉट रिपब्लिक. ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक कंट्री बिकॉज वहां पे जो हेड ऑफ स्टेट है दैट इज व्हाट क्वीन, एंड दैट इज अ हेरिडेटरी पोजीशन, राइट? That is not an elected person. But India is a republic definitely, right? US is a republic because the head of the state there here is it is president. US में भी president ही है, right? And that is basically what an elected person. वो अलग बात है कि यहाँ पे जो है हमारे head of state उनका indirect election होता है, direct election नहीं होता है, right? Anyway, तो बस ये याद रखना है कि republic is what head of the state which is an elected person, right? Justice, justice मतलब क्या? Citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, religion and gender, right? ठीक है ना? And liberty, there are no unreasonable restrictions. इस पे एक क्वेश्चन बना, अभी देखते हैं उसको. There are no unreasonable restrictions on the citizens. तो जो भी ये पॉइंट्स दिए हुए हैं मैंने एनसीईआरटी का डाल दिया है, इसको एक बार पढ़ लेना एग्जाम देने से पहले, राइट? ठीक है ना? इसके फर्स्ट एक आध लाइन से एक क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है? तो अनरीजनेबल का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे अनरीजनेबल है, इस वर्ड को ध्यान से देखो, रीजनेबल नहीं लिखा हुआ है. तो लिबर्टी का मतलब ये है कि तुम्हारे पास मान लो लिबर्टी है कि तुम मेरे घर में आके, मेरे पास ऐसा लिबर्टी नहीं है कि मैं सपोज कुछ के घर में जाके बोलूं कि 2 बजे की कि कुछ मेरे को तेरे को अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना है रात में, ठीक है ना, उठ जाओ, ठीक है ना, सोने नहीं दूंगा मैं तेरे को. मतलब कि इट्स नॉट, यार ऋषित को मैं बोलूं, किसी को भी बोलूं तुम्हें से पकड़ के, राइट? ठीक है ना, कि 2 बजे रात को मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, राइट? या फिर 2 बजे रात को मैं तुम्हारे घर के आगे डांस करूंगा, आके नाचूंगा, ठीक है ना? सो दैट इज व्हाट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, राइट? ठीक है ना? तो लिबर्टी तो है तुम्हें बोलने की, बट देर आर सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. तो यहाँ पे जो वर्ड है वो अनरीजनेबल, मतलब ऐसा कोई नहीं जैसे कि अब तुम्हें रोड पे नहीं चलना है, ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, ये अनरीजनेबल है, इसका कोई सेंस नहीं है. तो जो सेंसिबल रिस्ट्रिक्शंस है वो होंगे, जो सेंसिबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वो नहीं होंगे, मतलब अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजंस. तो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं. आई होप यू आर गेटिंग दिस वर्ड लिबर्टी, राइट? ओके. सॉवरेन का क्या मतलब होता है? कि जो डिसीजंस लेंगे वो क्या लेंगे? सॉवरेन मींस व्हाट? जो एक्सटर्नल डिसीजंस या फिर इंटरनल डिसीजंस, राइट? दैट विल बी टेकन बाय द व्हाट? पीपल, राइट? सो सुप्रीम पावर लोगों के हाथ में, ऑफ कोर्स लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स, बट रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेंगे वो लोगों के बिहाफ पे ही लेंगे, और अगर सही डिसीजन नहीं लेंगे तो उनको हटाया भी जा सकता है इलेक्शन के थ्रू, राइट? ठीक है. सोशलिस्ट, वैसे ये वर्ड लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इंडिया इज नॉट अ सोशलिस्ट कंट्री. बस जस्ट 1 मिनट दे दो, आई विल एंड द क्लास. आई नो तुम्हारे 4 क्लासेस थे, मैंने शेड्यूल देखा है. सो और तुम्हारा एग्जाम भी है अभी, ठीक है ना? जस्ट 1 मिनट मोर. सेकुलर का मतलब तुम्हें पता चल रहा है, राइट? चलो, या फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. एक क्वेश्चन मुझे ये बता दो और एक क्वेश्चन ये बता दो, दैट्स इट. ये दोनों क्वेश्चन बता दो. ये जो भी इस तरह का वाइट तुम्हें आ रहा है ना, दैट मींस इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. Which of the following is the inspiring philosophy of the Constitution of India? बताओ. ऑप्शन 3. देखो बच्चा, इसको एलिमिनेट करके भी कर सकते थे. कम्युनिज्म ना भाई, कम्युनिज्म मतलब क्या कि सारी प्रॉपर्टी लोगों के हाथ में, वहां पे मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है कम्युनिज्म में. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट? ठीक है ना? जैसे यूएसएसआर था एक टाइम में, और डीपीआर के बोलता है, ठीक है ना, एटलीस्ट दे से किम जोंग उन, राइट? ठीक है ना, बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की बात मैं कर रहा हूँ, बोलते हैं कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, बट फाइन. कम्युनिज्म मतलब देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट? और भी मतलब है, बट दिस इज व्हाट द सिंपलेस्ट वे आई एम सेइंग. और कम्युनलिज्म, ऑफ कोर्स कम्युनलिज्म तो इंस्पायरिंग फिलोसफी. कम्युनलिज्म मतलब कि दो कम्युनिटी के बीच में हेट फैलाना, राइट? ऐसा तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, राइट? सो आंसर विल बी सेकंड एंड थर्ड. तो इस तरह से भी कर सकते हो. ये कर दो. सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब क्या हो गया? इसी पे एक क्वेश्चन आया था अभी. सॉवरेन, sovereign means what? People have the supreme, yes, to sovereign people have the supreme right to take decisions, right? इसी में से कोई एक पकड़ के क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है ना? रिपब्लिक मतलब क्या? रिपब्लिक मतलब क्या? याद करो, हेड ऑफ द स्टेट, राइट? यस, हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन. फ्रेटर्निटी, वही फैमिली वाला कॉन्सेप्ट, राइट? पीपल शुड लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. एंड सेकुलर मतलब क्या? गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी रिलीजन.
राइट। ये सेकुलर के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें अगर दिखाऊं, कहाँ गया, जैसे ये एनटीएससी स्टेज 2 2017 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सोशलिस्ट फीचर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सोशलिस्ट फीचर, टू थ्री। अब देखो ये वर्ड देखो तुम, सोशलिस्ट आओ, सोशलिस्ट देखो कैसे क्वेश्चंस बना रहे हैं वो लोग। जस्ट सी द सोशलिस्ट, राइट। Wealth is generated socially and should be shared equally by society. Now see this. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequalities. They picked this particular word in 2017 directly. तभी मैं बोल रहा हूँ ये सारे snapshot तुम्हारे लिए बहुत important, right? Anyway, we will discuss in the next class. We will start from here. I've taken already 4 minutes, right? Thank you for so much for coming in the class, right? And we will 4 lectures मैं लूंगा, पॉलिटी में तुम्हारा खत्म करवा दूंगा, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी 9th क्लास की और 10th क्लास की, ईच एंड एवरी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। और अगर तुम ये कर लोगे जितना मैं दे रहा हूं, 7 questions to 8 questions you will be able to solve in your exam next year, ठीक है ना। वर्स्ट केस में 6 तो